Friends, let me begin from the, because suddenly there were few numbers and it's now in hundreds. Friends, we in last few weeks have covered COVID crisis, the medical aspects, the scientific aspects. We just want to discuss with you. We want you to feel, yes, there are people who are discussing these issues which media fails to cover. But this is not just a medical or science crisis. This is also a crisis of economy. It's a professional crisis, social crisis, family crisis. It is an infrastructural crisis. It's a foreign relation crisis. It's a export-import crisis. It's a travel, tourism crisis. It's all kinds of crises put together. It's also a psychological crisis. But if we have to fight COVID, and we have to get out of it successfully, it's very important that we as a nation succeed together. And for nation to succeed, it's very important that our politics succeeds together. If politics fails, you cannot do anything about it. Now, in 2014, like I was saying, people did not vote Mr. Modi only because he was a Hindu leader. There are so many Hindu leaders. You voted him because you thought he gets things done. He's a great administrator. You also believe that he's dabang, he's powerful, he's strong. Today, in this crisis, I am also critical of a whole lot of things which are not happening in this country. But I have noticed one thing, that the international powers, agencies, international media, all the NGOs, all kinds of activists, all kinds of political parties, newspapers, television, all the COVID vultures, just what do they want? They don't want the COVID to go. They believe this is their last opportunity to corner Modi and get him out of prime ministership, because, I don't know, it's very easy for you to figure out. There is something about them, they want to be protected. And they want him out, and they are attacking the country. It's become a global info war, a cyber war, a kind of a medical bio warfare against India, assumed, alleged warfare, which is denting the politics. In this context, I would like you to figure out whether PM Modi getting emotional is right or wrong, morally, ethically, politically, social behavior wise. You answer that. I think जो बोलना था वो हम सब समझ ही गए, बोल दिया गया. तो दोनों ही पक्ष हैं. कई लोगों का ये है कि भाई इमोशंस दिखाने में कोई गलत बात नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन इट. कई लोग जो हैं उनका, कई लोग मतलब लेफ्टिस्ट लोगों का मानना है ये इमोशंस जो दिखाना है ये एक तरह का ड्रामा है, ये क्रोकोडाइल टीयर्स हैं. कई लोगों का कहना है कि अरे तब आपने दीदी ओ दीदी क्यों बोला था, अब भुगतो. कई लोग चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान में, और बुरा नहीं मानिए अगर मैं ये बोलूं, कई लोग तो रोज़ सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं कि इतने सारे, उनको इतना बुरा लग रहा है. एक बहुत बड़ी डेटा साइंटिस्ट है, वो रोज़ डेटा पोस्ट करती हैं उसमें, और उसमें उन्होंने दिखाया डेटा किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है अब इंडिया में, और बाई जून एंड इट विल रियली कम डाउन टू द सेम लेवल एज इट वॉज इन जनवरी. तो कई लोग गुस्सा हो गए, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम लोग कोविड के चक्कर से निकल के आएंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट सो मेनी पीपल टू डाई. कई तो ऐसे लेफ्टिस्ट हैं जो इस बात से छटपटा रहे हैं, परेशान हैं कि ये जो चिताओं का जो प्रॉब्लम था, फ्यूनरल का जो प्रॉब्लम था, ये कैसे सॉल्व हो गया. फोटो और उनके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं. तो हर तरह के लोग इस दुनिया में जो चाहते हैं भारत में ही रह के भारत विकास ना करे, और भारत विकास नहीं होगा तो मोदी की छवि खराब होगी और फिर वो बन जाएंगे. तो ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. पर मैं डेफिनेटली एक बात कहना चाहता हूँ, जो हुआ सो हुआ, क्या सही है क्या गलत है ये तो इतिहास ही बताएगा. लेकिन एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसमें, दैट प्राइम मिनिस्टर मस्ट डू. अगर हम लोगों ने किसी तरह से बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय दिसंबर, हालांकि गवर्नमेंट हैज सेड 100% वैक्सीनेशन, बट मोदी जी, इफ आई अंडरस्टैंड हिज माइंड, ही इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. By 31st December, if we can get even 70% of India vaccinated, then everything will be forgotten. I'm sure people will also give him a new chance. And that is the time when all these leftist and anti-India forces will be exposed thoroughly. This is not the time to fight, friends. This is not the time to do tu meme. Yesterday, I objected to something which was very, very nasty and against India. This whole leftist gang like vultures came after me
because they are COVID vultures. They are vultures, they reach everywhere. I am not against any party. Yes, I do laugh at Rahul Gandhi, but I am talking about hardcore professional leftists whose job is to do vulture politics everywhere in the world with their media friends, with their intellectual friends. All I'm saying is, let's stay together, let's stay united. Let's please get out of this negativity. Right now, what option do you have? आप मुझे अच्छा एक बात बताइए, जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बड़े जो ज्ञानी बनते हैं, मैं कड़वा सत्य बोलता हूँ, जरा ये भी सुनिए, आप मेरी अच्छी बातें भी सुनते हैं, एक कड़वा सत्य भी सुनिए आप मेरा। कई लोग इसलिए परेशान हैं कि बंगाल में हिंदुओं को मार दिया हम और मोदी बैठा रहा हमने। अरे भाई, कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड में मोदी ने रैली कर दी, ये कर दी, हाँ कर दी। मोदी इज नॉट अ गुड प्राइम मिनिस्टर, हाँ नहीं है, चलो आप जो कहते हैं सब मान लिया, पर ये समझिए एक नाव चल रही है जिसमें आप बैठे हैं और वो नाव डूबने वाली है और उसको बचाने वाला भी एक ही आदमी है जो कि कैप्टन है। आपको नाव चलानी आती है, आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें, आप हैंडल कर सकते हैं ये सब, जहां सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी है। तो आप में कोई कैरेक्टर नहीं है। आप मोदी से तो भगवान राम की अपेक्षा करते हैं, आप कौन है? और मैं मोदी नहीं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है इस वक्त में यही कहता। तो आपका कैरेक्टर क्या है? आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या क्राइसिस चल रही है, क्या नहीं चल रही है। आप तो बस ये कि नहीं भाई हमारा तो हिंदू राष्ट्र बना दो। हाँ बनना चाहिए, ठीक है, पर उसका टाइम आएगा तब बनेगा ना। बंगाल की कोई बात नहीं करी, हाँ नहीं करी तो क्या बिगड़ गया? अब आप कहेंगे लोग मर गए मतलब बताया नहीं। अरे कहाँ ज्यादा लोग मर रहे हैं भाई? प्रायोरिटी कहाँ होनी चाहिए आपकी, स्टेट के मैटर में कि नेशनल मैटर में? आपका अपने इमोशन पे तो कोई कंट्रोल है नहीं। 24 घंटे आप अपना गुस्सा, गालियां, नेगेटिविटी, हेट्रेड सब चलता रहता है 24 घंटे। पर एक आदमी 10 सेकंड के लिए अगर रुक गया तो आप कहते हैं वो एक्टिंग है। हाँ मैं कहता हूं चलो एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है। आप परफॉर्मेंस नहीं करते अपनी सारी जिंदगी में। आपने पहली बार किसी पॉलिटिशियन को परफॉर्म करते हुए देखा है? गांधी को नहीं देखा था जब उनने सारे कपड़े उतार दिए थे और परफॉर्म किया था पूरे इंडिया के लिए। जब चाचा नेहरू फूल लगाते थे वो परफॉर्मेंस नहीं समझ में आता था। जब रुद्राक्ष की माला पहनते थे वो परफॉर्मेंस नहीं समझ में आता था आपको। लाल टोपी कोई पहनता है दुनिया में क्या? इस विश्व में कोई लाल टोपी पहनता है क्या? लाल टोपी पहन के जब अखिलेश वगैरह घूमते हैं आपको परफॉर्मेंस नहीं समझ में आता है। आपको अरविंद केजरीवाल क्लर्क बन के घूमते हैं, जी मैं तो आपका आदमियों को जानता नहीं हूं, वो परफॉर्मेंस आपको नहीं समझ में आता है। आपको सारी दुनिया में एक ही आदमी का परफॉर्मेंस समझ में आता है, बाइडेन का परफॉर्मेंस नहीं समझ में आता है। सो गिव, ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रेथ। डॉक्टर्स भी आजकल यही कह रहे हैं कि अगर कोविड हो जाए तो उसके पहले खूब ब्रेथ लीजिए, लंबी लंबी। टेक डीप ब्रेथ, सिट डाउन एंड थिंक you have only one pilot right now flying you in an aircraft. You have a choice. You can kill that pilot with your negativity, or you can just sit quiet like a good passenger and ensure and give your such collective energy, force with your all spiritual सनातन धर्म की जो आपकी पूरी जितनी आपकी एनर्जी है जिस पे आप गर्व करते हैं, throw those vibes to that pilot so that he lands the plane safely first. उसके बाद देखा जाएगा जो करना है। फिर नीचे उतरे, मार देना, हरा देना, 2024 में 0 सीट दे देना। आप बन जाइएगा प्राइम मिनिस्टर, खड़े हो जाइएगा पार्टी बना के, कौन रोक रहा है? पर फॉर गॉड सेक राइट नाउ डोंट गो बाय व्हाट मीडिया सेज। ट्रेजेडी इज बिगर देन व्हाट यू कैन एवर इमेजिन। यूपी में सिर्फ 20% से 20 से 30%, मैंने एक प्रोग्राम में बताया था, 20 से 30% सिर्फ डेथ रिपोर्ट होती हैं। 80% डेथ का पता भी नहीं है। अलग अलग स्टेट में, बिहार में, सब जगह बहुत कम डेथ रिपोर्ट होती। आपको पता भी नहीं। आपको पता है कि पंजाब के जो गांव हैं, दे आर द वर्स्ट हिट इन द होल ऑफ इंडिया। उससे आप नहीं तिल मिला रहे हैं। अगर आपका कोई पंजाबी दोस्त नहीं है या कोई आपका वहां रहने वाला नहीं, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना पॉलिटिकल एजेंडा अभी राइट नाउ एट दिस मूवमेंट कंप्लीट करना है। एक बार पूरे इंडिया को वैक्सीन कर दीजिए। किसकी जीत होगी? इंडिया की होगी कि मोदी की होगी? किसकी जान बचेगी, आपकी कि मेरी बचेगी? थिंक लाइक दैट, बिकम सेल्फिश, एंश्योर द ओनली पायलट यू हैव राइट नाउ, द ओनली ऑप्शन यू हैव राइट नाउ, you please give strength to that pilot so that we are safe